Hello students, good morning. Am I audible? Good morning, sir. You're audible. Okay, thank you. So let me share my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, okay. Let us quickly revise what we have done in previous class and then we'll start with the new point. In previous class, we have seen how to design finite automata. Finite automata is defined as a set of 5 tuples, q, sigma, delta, and start state and final state. 5 things, okay? Where q is set of states, sigma is input alphabet, qs is start state, f is final state, and delta is transition function, which is given by q cross sigma gives q. Okay, that means state on input gives you another state. Okay, and here since the drawback is that this machine is not having a memory to recall anything, therefore uh, this is going to work as acceptor. Okay, it is not going to generate anything, it is just going to accept or reject a particular string. So it is going to use for matching only, string matching. Okay, in language processing this can be used. Then we saw uh, a finite automata, string ending with some say 110 over here given over the input 0 comma 1. So we said okay, we will trace this 110. So by default we will assume start state. Okay, and then we say since this is a string of 0 and 1, so string may end with 0, it may end with 1. So we said okay, q0 for string ending 0, q1 for string ending with 1. Okay, and then we just made the combination starting from this one. Okay, so already we have assumed string ending with 1, now we will assume string ending with 1 1. So we trace to 1. Then we will assume string ending with 1 1 0. So we trace all the three, which is done over here. Okay, and string ending with 110 is the final state, therefore it is made as a star over here. Clear? And then we will go down and we will uh, draw transition table. We will write all the assumed states which we have assumed over here and the input in the columns. So particular state on 0, if it's a start state there is nothing, 0 comes, that means your string ends with 0, so q0. Similarly 1 comes at start state, so string ends with 1, q1. Okay, if q1 state is there, that means string is already ending with 1. So therefore you will write over here 1. No, therefore you will remove first one, so it becomes only 0. So string ending with 0, q0 you will write over here. Again string ending with 1 is there, 1 comes, combination becomes 1 1. Have you assumed 1 1? Yes, so therefore you will write q11 state. Now you are in q11 state, if 0 comes it becomes 110. So 110 is assumed over here, yes, therefore you will write q110. And if 1 comes, then it becomes triple one. Triple one is assumed over here, no. So you will remove very first one. So what will be remaining now? 1 1. 1 1 is there, yes. So therefore you will write over here 1 1. Similarly string ending with 110 is already there. If suppose 0 comes, then it will becomes 1100. 1100 string ending, have you assumed? No, you have not assumed. So you will remove very first one, so it will become 100. 100 is assumed over here, no. You will remove the next one, then it becomes 00. q00 is assumed over here, no. So you remove first 0, then becomes only 0. q0 is assumed, yes. So therefore q0 answer comes over here. Similarly you will do for this one, 110.
1 comes, so double 1, 0 1 is there, no, remove first one, it becomes 1 0 1. 1 0 1 is there in this combination, no, remove second one, then becomes 0 1 0 1 is there, no, remove 0, only 1, so q1 comes over here. Similarly, q0, if it gets 0, it becomes 0 0. 0 0 is not assumed, so remove first 0, ending with 0. Then 0 1, 0 1 combination is not assumed, so remove 0, only 1. So in this way you will draw a transition table, and once you draw the transition table, you need to draw transition graph. And in the transition graph, how will you represent the start state? Start state with pointed arrow. Okay, it means this is the start state. And how will you represent final state? Final state means what? Double circle. Okay, double circle with the state with the two encircled. So this is the exclusive state, that means final state. If any example ends on this state, that means this machine is going to accept, and if it is ending with any of this state, that means it is going to reject. Okay, students. So simulation also you need to show in this, and over here input is 110, and it is saying coming to the final state, therefore it is going to be accepted. Okay, so we have done this. Then we tried combination string containing. If it becomes containing, then once this state comes, you will be in that state only, q110. Okay, then we saw even odd combination, so we will assume even odd combination also. So we said, okay, uh, uh, both the letters 1 and 0, okay, both we can be even or odd, so 4 combination, so odd even, odd odd, even even. So this is done. So these two things we have done already. Okay, is it clear, everyone? Okay, everyone. Yes, sir. Okay, perfect. Now we will move to the next type of question. Sir, your charging is low. Thank you. Yeah. So let us start with next type of question. Next type of question says a divisibility tester. Design finite automata for a number divisible by 4. Okay. So I'm writing in the chat box what is the question. Question is design finite automata for number divisible by 4. ये कोई भी नंबर इनपुट आएगा, वो चेक करेगा कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं. Okay, that we will do now. Let's see this. So when we are actually dividing anything, right, so we will get remainder, correct? So based on the remainder we are going to do this. So here student is not mentioned what type of number it is and what input you are going to get. So we will take input as a normal decimal number, correct? It is not mentioned, that means it is going to be decimal number. So that means 0 1 2 3 dot 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 dot, it is up to 9. So total we have 0 to 9 10 number, therefore it becomes decimal. Okay, so base 10 by default.
So number divisible by 4, we can have a start state assumption over here. Then if you divide any number by 4, then you may have a remainder 0, you may have remainder 1, remainder 2, remainder 3, remainder 4 not possible. Okay, so Q0 means what? Remainder 0. Q0 remainder 0. Q1 is remainder 1. Okay, then you will assume Q2 because remainder now 2. Okay, similarly Q3, and remainder 3. Now we students, we need to find out what is the final state. We if remainder is 0, that means number is divisible by 4. So this Q0 will be our final state. Correct? क्योंकि Q0 बता रहा है कि remainder 0 है. So that is there, and then we will define all the terms. Here it is not mentioned, no, so we are taking decimal number, so 0, 1, 2, 3 up to 9. Okay, up to 9, which is input. We are taking QS as a start state. What is our final state name? Final state name is Q0. Q0 में अगर आया, so that means it is a final state. Correct? And now we will go for the transition table. ओके, अब ट्रांजिशन टेबल में जब जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक इनपुट्स आएंगे ना. वी नीड टू राइट ऑल द इनपुट्स. करेक्ट? सो वी विल राइट ओवर हियर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, ये सारे इनपुट्स हमारे आगे, एंड देन we will make it in a table form. No, yes, ये इनपुट को टेबल फॉर्म में डाल दिया हमने, and then we'll remove this part. This is Q1, this is Q2, so Q3, स्टार मार्क है, Q0 कर दो ऑलरेडी. ओके, इसको Q3 कर लो. ये सारे स्टेट्स ले लें. सी दिस ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, इट इज टोटली अप टू यू. ओके स्टूडेंट्स, so no need to worry for this, it is totally up to you. Now स्टार्ट स्टेट में है हम लोग, स्टार्टिंग में इनपुट 0 आया. ओके, सो दैट मीन्स we have a total number now 0. 0 divided by 4, क्या आएगा आंसर? रिमाइंडर 0 हो ना. Zero is divisible by 4 or not? Yes, no? Yes, sir. Yes. So answer will come over here, Q0. Similarly, all the numbers will come as it is. If it is 1, 1 divided by 4, remainder is 1 only, no? If it is 2, 2 divided by 4, remainder 2. 3 divided by 4, remainder 3. 4 divided by 4, remainder 0. Only thing is that here you have to just trace remainder only. So again, 5 divided by 4, remainder 1. So it is going to appear just like this, because it is a serial number. Okay, now again 8 will come, that means 8 divided by 4, remainder 0. 9 divided by 4, remainder 1, है ना. 4 2 is 8, remainder 1. This comes, then you are at this stage.
Okay, 1 is already there, 0 comes. That means 1 0 what will become? It is 10. Okay, 1 you attach 0 over there, it becomes 10 now. In this manner you have to solve. So 10 divided by 4, what will be the answer? 2. Remainder becomes 2, no? 2. 11 divided by 4, remainder 3. Okay, 12 divided by 4, remainder 0. Here students, I hope you guys are getting. सेम सीरीज वापस यहाँ पे कॉपी होगा. Then again it will this will be 1 and then 6. 16 divided by 4 फिर से क्या होगा? 0. ठीक है. 17 divided by 4 1, रिमाइंडर 1. 18 divided by 4 रिमाइंडर 2. 19 divided by 4 रिमाइंडर 3. फिर इधर आएंगे 2 0 20. 20 divided by 4 Q1 में 0 पे Q2 कैसे गया? Q1 में 0 पे ये 1 है, ये 0 अटैच कर दो तो वो क्या बन जाएगा? 10. राइट. 10 डिवाइड बाय 4 करोगे क्या रिमाइंडर आएगा? 2 ना. ठीक है. खाली ये पकड़ो तुम लोग, ये 1 है ना, 1 के पीछे जो भी नंबर इनपुट आएंगे ना उनको बस खाली अपेंड करते जाओ. फिर क्या डेसिमल नंबर कॉम्बिनेशन आया बस उसके ऊपर डिविजिबिलिटी लगाओ. इज इट क्लियर? ओके. हाँ ठीक है. चलो नेक्स्ट, ये 20 हो जाएगा. सो 20 मीन्स व्हाट? अगेन डिवाइड बाय 4 होगा. सो Q0 आने वाला है. 21 पे Q1 आएगा, 22 पे Q2, 23 पे Q3 हो जाएगा, है ना. 23 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर बचेगा 3. सो यहाँ पे Q3 आएगा. फिर 24 डिवाइड बाय 4 करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा. ओके. एंड देन 0, 25 पे 1, 26 पे 2, 27 पे रिमाइंडर 3 आएगा. 28 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 0. 29 रिमाइंडर 1. क्लियर. अब वापस इधर आएंगे हम लोग. 0 है. अच्छा ये देखो Q1 Q2, अभी अगर Q3 लेंगे तो उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि ये 29 पे खत्म हुआ है. अब यहाँ पे क्या होगा? ये 30 हो जाएगा. ठीक है. सो हम लोग क्या करते हैं ना, ये समझाने के लिए मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और इधर मैं Q3 लिखता हूँ, सो दैट तुम लोगों को समझ में आएगा कि सीरियली कैसे जाता है ये. और लास्ट में मैं Q0 लिख रहा हूँ और Q0 के पहले स्टार मार्क कर देते हैं. ओके, अभी समझेगा आपको. चलो 30 होगा अभी ना. ये यहाँ पे 29 पे खत्म हुआ, अब ये 30 चालू हो रहा है. तो 30 पे क्या आना चाहिए? 30 डिवाइड बाय 4, 4 7 जा 28, मतलब 2 बचेगा रिमाइंडर. तो Q2. राइट. 31 पे क्या बचेगा? Q3. और फिर इसके बाद वापस से 32 आएगा ना. 32, 33, 34, 35 ऐसा आने वाला है कॉम्बिनेशन. तो सेम रिपीट कर दो. Q0, Q1, Q2, Q3. फिर वापस यहाँ पे क्या होगा? 36. फिर से Q0 आएगा. 36 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 0. ओके. 39 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा. बराबर आ रहा है. चलो ये कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लिया. अब यहाँ पे आते हैं हम लोग. ये 0 है, ये 0 आया. 0 0 मतलब 0 ही होता है. 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, रिमाइंडर 0 ही आएगा ना. ठीक है. तो आंसर इधर क्या होगा? 0. रिमाइंडर 0 आया इधर. ओके. सो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9. सो इट इज एज गुड एज सेइंग दैट स्टार्ट स्टेट. स्टार्ट स्टेट में हमारे पास कुछ नहीं था, जो भी इनपुट आया वही नंबर को डिवाइड कर देगा, तो सेम टू सेम वही आंसर आएगा. तो जो Q0 है और स्टार्ट है हमेशा ऑलमोस्ट सेम आता है इसका आंसर. तो ये हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये समझा सबको? यस एवरीवन.
समझा ठीक है, सर। समझा, वेरी नाइस। सो इसको हम लोग ना अभी कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद चेक करते हैं कि ये अपने को आंसर मिल रहा है कि नहीं, whether it is ending with that or not. So since we have only 4 states, no, Q0, Q1, Q2, Q3 and start state, right? तो हम लोग वही लेंगे और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। So we have a start state over here named as QS. We have acha, we will make a Q0 also, just like a start state, because Q0 और start एक ही जैसा है। फिर हमारे पास स्टेट आता है Q1, Q2, ओके, और Q3। Q0 हमारा बताएगा कि रिमाइंडर 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा, इसलिए इसको डबल सर्कल कर देंगे। और स्टार्ट स्टेट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एरो मार्क कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, ये टेबल पे आएंगे, चेक करो 1, 5 और 9, 1, 5, 9, इसके ऊपर Q1 स्टेट आ रहा है, बराबर है। सो स्टार्ट स्टेट से लेके यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो इनपुट क्या आएगा, 1, 5 और 9। ये अगर इनपुट आया है स्टार्ट स्टेट में तो भाई Q1 में जाएगा, करेक्ट है। और अगर 0 आया तो वो यहाँ पे आएगा, 0 मतलब डिविजिबल बाय 4 है, 4 डिविजिबल बाय 4 है, 8 डिविजिबल बाय 4 है, राइट, ओके। अब क्या बचा, अब रिमाइंडर देखो, हमने क्या किया, रिमाइंडर 1 ले लिया, रिमाइंडर 0 ले लिया। अब रिमाइंडर 2 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो रिमाइंडर 2 में क्या क्या आइटम आएंगे, 2 हो गया, देन 2 + 4 6 हो जाएगा, करेक्ट। तो रिमाइंडर के लिए 2 और 6 ही होगा ना। रिमाइंडर 3 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 + 3 से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, 3 रहेगा, 3 और क्या रहेगा, 3 + 4 7, राइट, यस और नो, 3 और 7 हो गया, ये कॉम्बिनेशन आ गया इधर। अभी इसमें आएंगे, अब 1 पे अगर हम लोग है, अच्छा सेम कॉम्बिनेशन Q0 वाला जो है और QS सेम कॉम्बिनेशन आएगा, तो वही हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे। Q0 0, 4, 8 पे इधर ही रहेगा, राइट ना, 0, 4, 8 पे यहीं पे रहने वाला है। तो ये 0, 4, 8 यहीं पे है। और Q1 में जाएगा तो सेम यही 1, 5, 9 कॉम्बिनेशन पे आएगा, 1, 5 और 9, ठीक है। इसका लेटर चेंज कर लेता हूँ, 1, 5, 9, ओके, बीच में कॉमा डाल देता हूँ, डन। Q2 पे आएगा तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 2 और 6, 2, 6। सिमिलरली Q3 पे अगर आएगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3 और 7, 3 और 7, ओके।
एंड देन नाउ वी हैव टू, ये दो हो गया, स्टार्ट हो गया और Q0 हो गया। अभी Q1 Q2 Q3 पे देखेंगे हम लोग। अच्छा Q1 पे 2 कब कब आएगा? 2 ये 0 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, राइट। सो Q1 से Q2 जाएगा 0, 4 और 8 पे। सो Q1 से Q2 पे मूव करेगा 0, 4 और 8। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। अच्छा 3 पे कब जा रहा है? 1 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 9। 1, 5, 9, राइट। Q0 पे कब जाएगा? 2, 6। ओके, 2 and 6 ओनली। सो यहां से यहां पे तो किस पे जा रहा है? 2 पे और 6 पे। डन। नेक्स्ट, सारे कवर कर लिए हमने। अच्छा Q1 कब आ रहा है? Q1 3, 5, सॉरी 3 और 7। 3 और 7 पे Q1 रहेगा, मतलब वो सेल्फ, उसको सेल्फ यहां पे लगा देंगे और इट इज फॉर 3 and 7। ओके, मतलब ये 3 स्टेट कवर कर लिए। अभी बचा Q2 हमारे पास। Q2 के पास जाएंगे। Q2 0 कब Q0 कब आएगा? 0, 4, 8। ओके, 0, 4, 8 ये Q0 पे आ रहा है। 0, 4, 8। ओके, देन Q1 कब आ रहा है? 1 पे आ रहा है, 5 पे, 9। 1, 5, 9। ये यहां से यहां पे आएगा। लेट मी चेंज द कलर। यहां से यहां गया 1, 5, 9। ठीक है, नेक्स्ट वन Q2 ऑन 2। अच्छा Q2 कब आ रहा है? 2 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। सो सेल्फ जो है वो सेल्फ विल बी ऑन 2 and 6। 2 and 6। ओके, देन विल मूव फर्दर नाउ। Q3 कब आएगा? 3 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। यहां से Q3 आया, इनपुट 3 और 7। ओके, सो ऑल डन। Q0 Q1 Q2 Q3 हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्या बचा? लास्ट में Q3 बचा। Q2 किस पे आ रहा है? 0 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, आई एम सॉरी, Q2 आ रहा है 0 पे, 4 पे, 8 पे। ओके, 0, 4, 8 Q2। सो is going to this place on the input 0, 4, 8। ये कॉम्बिनेशन किया हमने। ओके, नेक्स्ट वन
चेक करेंगे अभी। Q3 आ रहा है, 1 पे आया, 5 पे आया, 9 पे आया। Q3 comes on 1, 5, 9। ठीक है। नेक्स्ट Q0 कब आ रहा है? 2, 6। यहां से यहां जाएगा 2 and 6, Q0। ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे हम लोग। ये 2 3 ही हो गया। नेक्स्ट बचा Q1। Q1 कब आ रहा है? 3 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। 3 and 7। 3 and 7 पे कहां पे जा रहा है? Q1 पे। ओके, 3 and 7। So this will come over here। Okay, on 3 and 7। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे इनपुट भी बहुत ज्यादा थे। 9 नंबर्स इनपुट थे, राइट? सॉरी, 10 नंबर्स इनपुट थे, इसके लिए इतना कॉम्बिनेशन आया इसका। अदरवाइज एग्जाम में दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वन। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 144। अब ये 144 4 से डिवाइड होता है क्या? चेक करो। 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 बचा, 4 6 जा 24। मतलब ये डिविजिबल है। अभी हमारा मशीन क्या बोलता है ये डिविजिबल है कि नहीं, वो चेक करके देखते हैं। सो वेरी एट वेरी बिगिनिंग वी आर इन दी स्टार्ट स्टेट QS। हमारे पास इनपुट क्या आ रहा है? 1। 1 इनपुट किधर है? ये रहा। तो 1 इनपुट आते हैं हम लोग जाएंगे Q1 में चले जाएंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स? वी विल कम इनटू Q1। अब Q1 स्टेट में है हम लोग। अभी इनपुट क्या है? नेक्स्ट 4 आया। Q1 में 4 इनपुट पे किधर ट्रांजिशन हो रहा है वो जरा चेक करो आप लोग। 048 ये रहा 4 इधर आ। तो Q1 से हम लोग चले जाएंगे सीधा Q2 में आ जाएंगे। ठीक है, Q2 में आए, फिर वापस अगला इनपुट क्या है अपने पास? 4 आया। Q2 में 4 इनपुट पे किधर जा रहा है? Q2 में 4 इनपुट पे देखो 048, ये रहा कॉम्बिनेशन। तो ये आ रहा है Q0 में आ रहा है। अभी हम लोग आ गए Q0 स्टेट। यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई। अब चेक करो Q0 फाइनल है क्या? यस, Q0 फाइनल है। हेंस ये क्या बोलेगा? द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, सो 144 डिविजिबल हो गया, ये प्रूफ कर दिया ये मशीन ने। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस। ओके, गुड। सो अब ना क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग हो जाता है कि अपने को मशीन जब लेवल पे हम लोग काम करते हैं तो ऑल द नंबर्स आर इन द बाइनरी। ये तो सिंपल था, ये तो हमने रियल लाइफ के नंबर ले लिए डेसिमल, जो हम लोग अपने कॉमर्शियल यूज के लिए करते हैं नंबर्स का इस्तेमाल। लेकिन बाइनरी का इस्तेमाल तो मशीन करता है, तो हम लोग बाइनरी में चेक करेंगे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा ना वो बाइनरी पे आएगा। ये क्वेश्चन पूछना डिफिकल्ट है इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि मैंने ट्रांजिशन डायग्राम बनाने में कितना टाइम लिया। क्यों लिया? क्योंकि ना मेरे पास 10 नंबर इनपुट थे। हर स्टेट पे 10 इनपुट मैं अप्लाई करूंगा और फिर ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। आई मीन इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो जनरली एग्जाम्स वगैरह में या फिर इसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है। ओके, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट ईयर। अब ये सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन ना यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं हम लोग ये फॉर्म में। सो
इसको ना अभी डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर बाइनरी नंबर लिख देते हैं, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 4। सो जाहिर सी बात है कि अपना जो इनपुट होगा वो 0 और 1 ही होगा। बाइनरी मतलब 2 होता है और 2 के रिमाइंडर क्या होंगे, 0 और 1। ओके, सो बाइनरी नंबर ये हो गया। सो अब यहाँ पे अपना स्टेट अजम्पशन में जाएंगे हम लोग। Is it reduced? Okay. सेम डिविजिबिलिटी बाय 4 है। सो अपने अजम्पशंस भी सेम रहेंगे ना। क्यू एस स्टार्ट सेट हो जाएगा, क्यू जीरो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर 0, क्यू वन रिमाइंडर 1, क्यू टू रिमाइंडर 2 और क्यू थ्री रिमाइंडर 3। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे, तो वो हमने लिख के ले लिया। डन। इनपुट हमारे पास 0 और 1 रहेगा। सो उसको छोड़ के बाकी सारे जो कॉम्बिनेशन है वो इधर से निकल जाएंगे। ओनली 0 and 1 इनपुट ओवर हियर। डन। कमिंग डाउन नाउ। सो ये 2 ऑनवर्ड्स तो कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, करेक्ट ना, ये कुछ भी नहीं चाहिए हमको। दिस इज गॉन नाउ। ओके, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को अच्छे से अभी? हाँ ठीक, चलो। सो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इनपुट बाइनरी बोला है, इसलिए यहाँ पे इनपुट चेंज हो जाएगा। हमारे पास 0 और 1 ही इनपुट होने वाला है। डन। अब अगर स्टार्ट में अपने पास कुछ भी नहीं है, 0 आया तो 0 डिवाइड बाय 4 करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 1 आया, 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला है क्या, जरा ध्यान से देखो। अभी 1 है अपने पास, राइट। सो नाउ हाउ वी विल यूज दिस नंबर। ये 1 में अगर डायरेक्ट 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 डिवाइड बाय 4 किया तो आता है। लेकिन हम लोग अभी ना डेसिमल नंबर में नहीं, हम लोग किसमें है, बाइनरी में है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला एक याद कर लो, मैं फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी कुछ आया तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, 2 into r plus input can be 0 or 1। ये बाइनरी का फॉर्मूला है। ओके, the entire thing divided by, ये पूरा चीज को डिवाइड करना है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं। 2r प्लस इनपुट डिवाइडेड बाय, हम लोग बाइनरी बाय 4 ना, 4। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ओके, साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं। सो 2r प्लस वाई 2 स्टैंड फॉर बाइनरी। ठीक है, राइट, 2 स्टैंड फॉर बाइनरी। तो 2r प्लस जो भी इनपुट आएगा वो, ये सब आंसर निकालो और फिर इसको डिवाइड बाय 4 करो, तो तुमको रिमाइंडर पता चलेगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया, अगर बोला सेम नॉर्मल डेसिमल नंबर, तो क्या ये फॉर्मूला यूज होगा। डेसिमल मतलब होता है 10। ओके, राइट। सो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10। 10 इंटू जो भी रिमाइंडर रहेगा वो प्लस इनपुट। तो जरा आप चेक करते हैं कि ये जो हमने टेबल बनाया है, फॉर्मूले के हिसाब से 10 इंटू 1 10 हो गया, प्लस जो भी इनपुट आएगा वो, मतलब 1। ये ऑलरेडी 1 इंटू 10 ये क्या हो गया, 10 हो गया। 10 प्लस 0 क्या बना, 10। तो इट इज एज गुड एज सेइंग 1 के पीछे 0 लगा दो, और ये वाला क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11। तो ये बराबर ना, 1 के पीछे 1 लगा दो तो 11 हो गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, ये वाला चेक करेंगे। 2 इंटू 10 20।
20 प्लस 0, 20 ओनली, 20 प्लस 1 21, तो यस इट इज इन द सेम फॉर्मेट नो। तो ये फॉर्मूला सबके लिए वर्क करने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है बेस को। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? बेस। सो जो भी नंबर का बेस रहेगा वो बस यहाँ पे लिख दो और बाकी फॉर्मूला सब सेम रहने वाला है। ओके तो अब हम लोग ये बेस में डाल के इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस डू दिस नाउ। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग एज इट इज लिख के ले लिया। यहाँ पे जब Q1 में हम लोग आए तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया स्टूडेंट्स? 1 आया। अब ये 1 यहाँ पे पुट करोगे, सो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस व्हाट इज द इनपुट कमिंग ओवर हियर? 0। 2 प्लस 0 क्या आंसर आया? 2। 2 डिवाइड बाय 4 किया, क्या मिलेगा आंसर अपने को? रिमाइंडर में 2 ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे आंसर 2 आया। ओके इसके बाद 1 आया। अभी हमारे पास ये 1 है, ठीक है। फिर से 2 इंटू 1 2 आएगा। अब इनपुट में क्या आया? 1। सो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? 3 ओनली, ठीक है। फिर चलो 2 में आओ इधर। 2 2 अच्छा आर की जगह पे 2 लिखोगे अभी, तो 2 2 जा 4। 4 प्लस 0 इज 4 ओनली। 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर क्या बचेगा? 0, इसलिए 0 आ गया इधर, ठीक है। सो 2 2 2 जा 4 प्लस 1 5। 5 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 1, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएंगे हम लोग अभी। 2 3 जा 6। 6 प्लस 0 6। 6 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 2, ठीक है। 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 3, ओके। फिर Q0 स्टेट मतलब ये रिमाइंडर 0 है तुम्हारा, ये पूरा 0 हो गया। फिर इनपुट 0 आया, सो 0 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 0। फिर ये पूरा 0 है, 1 आया। 1 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 1, यस। तो सेम टेबल आया, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू गिव द नंबर एज इट इज। ये समझ में आ रहा है सबको? ये स्टूडेंट्स, Yes, sir. Q1, Q2, Q3 सीख लिया. हाँ। अच्छा अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी पूछे, ठीक है। अगर तुमने रिमाइंडर के स्टेट को इसी ऑर्डर में लिखा, स्टार्ट स्टेट, अच्छा स्टार्ट और Q0 एक ही रहता है, तो मान लो Q0 पहले लिख दिया, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो ना स्टूडेंट्स ये जो स्टेट्स अंदर फिलिंग होंगे ना, वो सारे सीरियल में जाएंगे। 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, इसी ऑर्डर में जाएंगे वो। चाहे कोई भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन ले लो, 101% अगर आपने ये ऑर्डर मेंटेन किया तो ये ना ये हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में आने वाले हैं। तो हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे जहां पे आपको समझेगा कि ये वाकई में सही बोल रहा हूं मैं। हाँ तो अच्छा इसको एक बार जरा वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। कोई भी बाइनरी नंबर ले लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। So we'll take any binary number. Quickly we will do this. तो ये मैं erase कर रहा हूँ and let us take we have a start state. ये हमारा starting हो गया। फिर Q1 remainder 1, Q2 remainder 2, Q3 remainder 3 और हमारा एक और फाइनल स्टेट है जिसका नाम है Q0, वो रिमाइंडर 0 को शो करेगा। ओके सो दिस इज देयर। सो स्टार्टिंग में अगर 0 आया तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, अब मैं सिंपली जो ऑर्डर मैंने बताया आप लोगों को वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके मतलब Q0 Q1 Q2 वाला आइडिया लगा रहा हूँ। तो स्टार्ट में हूं मैं, सबसे पहले मैं किधर जाऊंगा? 0 पे Q0, फिर 1 पे Q1, ठीक है। अच्छा ये चीज कॉमन होगा Q0 के लिए भी, 0 पे ये इधर ही रहेगा और 1 पे इधर जाएगा।
ओके, अब मैं आऊंगा Q1 पे, 0 और 1 हो चुका है, 0 पे अभी जाएगा 2 पे और 1 पे जाएगा ये 3 पे, ठीक है। सीरियल ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ, 0 पे इधर आया, 1 पे इधर आया। अब मैं आऊंगा Q2 पे, ठीक है। तो मतलब Q2 Q3 हो चुका है, राइट, है ना। Q1 से Q2 और Q3 हो चुका है। अब वापस से 0 स्टार्ट, जब जाऊंगा तो 0 पे आएगा, ये जाएगा इधर 0 1, ठीक है। अब ये 1 पे खत्म हुआ है Q2 पे। अब मैं Q3 पे आऊंगा तो 2 से चालू होगा, तो 0 पे Q2, 1 पे Q3, राइट, हो गया, सारे स्टेट बन गए। अभी आप यहाँ पे चेक करो, मैंने यही फॉलो किया है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1, ये साइक्लिक आया हुआ है। सेम चीज इज फॉलोड ओवर हियर। अब मैं इनपुट में कुछ भी ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट में ले लिया डिविजिबल 4/4 ना, तो 4 ही लेके देखते हैं, 1 0 0। अब ये लेके देखते हैं इसमें अपने को आंसर मिलता है कि नहीं मिलता, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट स्टेट में थे, इनपुट आया 1, सो 1 में इनपुट आने पे हम लोग किधर आएंगे, Q1 में आ गए। फिर Q1 स्टेट में है, इनपुट आया 0, सो ये क्या बोलता है, गो टू Q2, Q2 में आ गए। Q2 स्टेट में है, इनपुट आया 0, सो ऑन 0 इट इज कमिंग ओवर हियर Q4 Q0। तो लास्ट में स्टेट अपने को क्या मिला, Q0, which is nothing but final state. Hence 100 is divisible by the machine, ठीक है। ये डिविजिबल है, बोलेगा डिविजिबल बाय 4, यस। तो मशीन क्या करेगा, इस नंबर को एक्सेप्ट करेगा, ओके। कोई दूसरा नंबर लेके देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1011, 1011 का मतलब क्या होगा, 8421, 8 + 2 10 + 1 11 हो गया ये नंबर। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बराबर है। 11 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा ना, राइट। तो चेक करके देखते हैं हम लोग कि रिमाइंडर भी एग्जैक्ट सही दे रहा है क्या वो। हाँ, चलो, तो यहाँ पे आएंगे, पहले 1 इधर आया, 0 Q2 पे आया, फिर 1 Q1 में आया, राइट, फिर 1 Q3 में आया, खत्म हो गया। लास्ट में अपने पास स्टेट Q3 मिला। Q3 इज नॉट फाइनल, देयरफॉर मशीन विल रिजेक्ट दिस नंबर, करेक्ट। और Q3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉस ये जो नंबर दिया है उसका रिमाइंडर 3 होने वाला है, ओके, क्लियर। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एवरीबॉडी, यस सर। यस सर। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब अगर मैंने बोला कि क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई डिविजिबल बाय 3 कर दो या 5 कर दो, चलो मैं 5 करके देखता हूं। तो मैंने जो आपको बोला है कि ये सीरियल ऑर्डर में नंबर आते हैं, वो होगा क्या, चेक करके देखते हैं। डिविजिबल बाय 5 किया, यहाँ पे हमने रिमाइंडर्स 5 के आ जाएंगे ना, 5 के रिमाइंडर 0 से लेके 4 तक होंगे। तो स्टार्ट स्टेट Q0 Q1 Q2 Q3, और इसके बाद एक और आ जाएगा Q4। Q4 क्या बोलेगा कि बॉस रिमाइंडर जो है वो 4 है, ओके, ये रिमाइंडर 4 आ गया इधर, डन। सो सिमिलरली हम लोग के टेबल में भी जाएंगे, और ये सब वही से रहेगा कि इनपुट बाइनरी नंबर ही ले रहा है, 0 1 रहेगा, ये स्टेट्स QS रहेगा, Q0 रहेगा, फाइनल स्टेट सेम, इनपुट भी वैसा ही रहने वाला है। हाँ, खाली यहाँ पे एक और चेंजेस ये आने वाला है कि Q0 की जगह पे, अच्छा ये जो नंबर है ये मैं कट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं Q4 करता हूँ, Q4, और
मैं ना सेम ऑर्डर लिखता हूँ, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 ना, अभी 4 रिमाइंडर बन गए इसलिए यहाँ पे Q4 आना चाहिए। फिर से Q4 के बाद अब ये वापस Q0 होगा, ये Q1 होगा, ये Q2 होगा और ये Q3 होगा और ये Q4 होगा। ये वेरीफाई भी करके देखेंगे हम लोग सही किया है कि नहीं किया है। अच्छा, Q0 वाला यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे Q0 वाला ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, सो ये Q0 जो होता है वो Q स्टार्ट स्टेट का कॉपी रहता है, सेम टू सेम मैसेज आने वाला है, Q0 Q1 डन। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी था उसको खाली मैंने सीरियल ऑर्डर में लिखा। रिमाइंडर खाली एक चीज याद रखा कि जो भी रिमाइंडर के स्टेट्स है ना उनको सीरियल ऑर्डर में लिखना, बस वो कर दिया। ठीक है, और ये सीरियली सारे स्टेट्स लिखते जाओ। अब वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये सही है। चलो Q4 लेते हैं, मतलब रिमाइंडर 4 आया, यहाँ पे R की जगह पे 4 डालो, बाइनरी नंबर चेक करना हमको, यस, तो 2 आएगा यहाँ पे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 0, ओके 0, 8 प्लस 0 8 आएगा और डिवाइड बाय 5 करो, तो 8 को डिवाइड बाय 5, क्योंकि हम लोग डिविजिबल बाय 5 कर रहे हैं, 8 डिवाइड बाय 5 करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3, रिमाइंडर 3 आया ना, बराबर मैच हुआ ये। समझा स्टूडेंट्स? तो मतलब क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का कुछ भी आने दो, तुम क्या करने का, बस यही ट्रिक करने का कि सब स्टेट्स को सीरियल ऑर्डर में लिखने का और Q0 Q1 Q2 Q3 ऐसा करते जाओ, एंड देन यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो। इज इट ओके एवरीवन? ये समझा? यस सर। परफेक्ट। चलो अब ये क्वेश्चन में थोड़ा और चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी बाइनरी बोला, अगर इसमें टर्नरी नंबर आ गया, टर्नरी नंबर मतलब कि जहाँ पे बेस में 3 अलग अलग आइटम है, ठीक है, बेस मतलब नंबर जो है वो 3 अलग अलग डिजिट से बना हुआ है, 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है बनना। बाइनरी में 2 ही कॉम्बिनेशन 0 1, डेसिमल में 10 कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 9, टर्नरी में 3 और 2, ये ले लेते हैं। ये डिविजिबल बाय 4 करेंगे, 5 कर देते हैं, चलो ठीक है, और 0 1 और 2 ले लेते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, सारा क्वेश्चन सेम वैसा रहने का भाई। स्टार्ट स्टेट है, रिमाइंडर 0 1 2 3 4 is going to in the same way, and then we'll come down now। ये यहाँ पे इनपुट 0 1 और एक और इनपुट ऐड होगा, क्योंकि ये टर्नरी नंबर है, तो 0 1 के बाद यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे एक और नंबर आ गया है 2। ओके, सो इसको जरा बोल्ड कर देता हूं मैं ताकि दिखे। चलो, सो ये 2 इनपुट आ गया। अब क्या, यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा वो चेंजेस हो जाएगा ना, बाइनरी नंबर की जगह पे टर्नरी नंबर आ गया, मतलब जहाँ पे नंबर में 3 अलग अलग बेसिक नंबर हैं, तो ये 3 हो जाएगा, फॉर्मूला में 3R प्लस इनपुट हो जाएगा। डेसिमल अगर रहता है तो 10R हो जाता है, टर्नरी 3R, बाइनरी 2R। ओके, अच्छा, और ये इनपुट कॉम्बिनेशन में 0 1 के साथ एक और इनपुट आ जा रहा है, 2 भी आ जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेकिन ना कुछ भी करो, अगर हमने ये ऑर्डर मेंटेन किया है, इसी ऑर्डर में हम लोग जाएंगे अभी। हाँ, 0 1, यहाँ पे क्या आएगा भाई, 2, देन 0 1 2, अच्छा डिवाइड बाय 5 है तो 4 तक जाना है अपने को, 0 1 2, देन दिस विल बी same like this because it is a start state and Q0। ओके, Q0 है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दो, डन। देन Q1 आ गया, ओके, सेम ऑर्डर में रखा है, so Q0 Q1 Q2, this will be Q3,
this will be Q4 के बाद रिमाइंडर खत्म, फिर से 0 से स्टार्ट करो, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, फिर से रिमाइंडर खत्म, 0 से स्टार्ट करो, Q0 Q1 Q2 Q3 and then Q4. ओके, अब हम लोग ये मैच करके देखते हैं कि वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट. ठीक है, सो ये फॉर्मूले में डालो, इधर चेक करते हैं. चलो Q4 वाला, Q4 मतलब रिमाइंडर 4 है, सो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस आया 0 ले लो, 12 प्लस 0 12, 12 डिवाइड बाय 5 करोगे क्या आंसर आएगा, 12 डिवाइड बाय 5 अगर करेंगे आंसर क्या आएगा, 5 2 जा 10, मतलब रिमाइंडर 2 बचेगा ना. ये देखो रिमाइंडर 2 आया इधर. ओके, सो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कोई भी नंबर सिस्टम हो उसको तुम ना अपने रियल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का. ओके, सो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया, फिर डिविजिबिलिटी करो और फिर सेम जो रिमाइंडर आया उसको लिखते जाओ. सो दिस इज सेटिस्फाइंग दिस, यस. और मैंने जो दूसरा चीज बोला कि ये ऑर्डर सेम मेंटेन करोगे तो ये जो स्टेट्स है वो सीरियल ऑर्डर में साइक्लिक होते जाएंगे, तो ये भी करेक्ट आंसर बैठ रहा है. हाँ चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 3 है और 2 के लिए चेक करते हैं. 3 रिमाइंडर 3 और इनपुट आया 2, सो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 11 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1 बचता है. चेक करो, यस वेरीफाइड, रिमाइंडर 1 आया. डन एवरीवन, इज इट ओके? ओके, चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. तो we have done divisibility, we have done even odd, string ending, string containing. Okay, ये binary number, ternary number, so this formula you guys just remember this. Okay, so I just write it over here. Okay, so this is the formula for divisibility, and where this is the base. So this I am going to put in the class Moodle. Okay, so this is done. So let us go to the previous topic. Okay, now I hope you guys can
do a variety of finite automata question you can solve. Now we will go to the previous lectures where I have covered regular expression. Okay, so now we will try to understand how we can convert regular expression to finite automata machine. Because what happens in natural language processing, we will come up with this mathematical equation, and from that mathematical equation we need to generate a logical machine. So there is some important rules involved. How we can convert that, so that we will see now. So there are certain rules, so we'll see it. I will recommend you guys to simultaneously write down in the notebook. Okay, then it will be helpful for you. Okay, so we have a regular expression, that means RE, and we want to convert it to finite automata. Right, we have seen regular expression, we have also seen finite automata. Now we want to convert regular expression to finite automata. What are the rules? How can we? Okay, so number one, if there is nothing, that means null set. Okay, null set, we can represent the symbol as phi, like this. This is what null set. So how will you represent null set into the finite automata? Simultaneously you guys can write down. So null set means what? There is nothing. So if you want to draw this in the finite automata, you have a start state and you have a final state. This is a null set. That means there is nothing. So that means start state is not connected with the final state. Correct? Start state is not connected with the final state. So nothing. So that means nothing is there. That machine is not there. Okay, the where only start state, it is not reaching the final state. So no input, nothing, done. So this is the rule to implement null set. If there is a null set, then you can show like this. Now see, students, you should not get confused that finite automata and sir is drawing this symbol. If I have drawn this symbol, then you guys should be able to represent this in the form of a Q, sigma, delta, start state, and final state. Okay, what is the Q over here? QS and F. What is the input over here? Nothing. So you will make empty set, this one. What is the delta? Delta is a function, no? Q cross sigma giving you another Q. So this is the definition for that. Start state QS, final state QF. Yes, done. So this machine is done over here. There is nothing, no input. So this is empty. Clear? I hope you guys are getting. Yes, everyone. Clear? So could you repeat once, please? Yes. Uh, Here I am teaching you how to convert regular expression to finite automata. So there are some standards things, and we will stick to that. So we will say rules.
So rule number one, if you have a null set as a null set is there and you want to represent null set into the finite automata, then you just simply draw a start state and final state. There is no connection in between. So if there is no connection in between, that means there is nothing, no machine. Okay. If machine is not reaching the final state, that means that machine is useless. It is as good as saying that that machine doesn't exist. Okay. So this is the symbol for that. So this is not there. And in order to represent in the form of finite automata, I'm going to use only the graph, transition graph, so that you can do reverse engineering. From that transition graph, you could find out all this, right? In the previous examples which we have done for finite automata designing, we used to start with the state and then we used to apply input on that, and we used to draw a table, and then from that table we used to draw a graph. So graph was the last thing, and over here I'm directly drawing a graph, and from that graph you can derive all those things for doing the specification of finite automata. Okay, so this is a rule, so you guys have to stick with this rule. Okay, rule number 2. If suppose input is epsilon, this is the symbol of epsilon. Okay, and EP epsilon. Okay, this is just a symbol. I'm writing a spell over here. Okay, so how will I represent this? I will write start state. Hello, am I connected? Yes, sir. Okay, so start state. Then I have a final state as well. Okay, and from start state to the final state, machine is reaching on epsilon input. Okay, so this is the representation of RE. If your RE is having only epsilon, okay, then this is the way to reach from start state to final state. Okay, this is the finite automata for epsilon. Next comes say a machine, your RE is having A. So that means regular expression is having A. It means that string is having a single letter A. Correct? Right now, string is having single letter A, or 0 or 1 or 2 or B or anything else. So in that case, again, what you will do, you will draw start state. Simultaneously, you guys can draw in the notebook, so that in later on you should know this what is going on, because I'm going to use directly these things, these rules. Okay, so on start state, when you provide input on start state as input as A, then it is reaching the final state. Okay, similarly if you want to write, if you say input is B, okay, input is B, let me erase this. Similarly, input is B, input B, then
same thing, everything will be same, only over here this will be like this. On input B, reaching the final state. Clear? Yes, students, you are following? No? Yes, sir. ओके अच्छा, अभी अपने मशीन में ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रिंग हैविंग सिंगल ए और सिंगल बी, मतलब ए और बी दोनों हो सके तो, मतलब मेरा अभी यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करूंगा, उसके बाद फिर मैं आऊंगा इस पे ये ड्रॉ करने पे, ठीक है। सो वो चेक करेंगे सिंगल ए सिंगल बी दोनों। सो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। सिंगल ए तो चलेगा, चलो सिंगल ए और बी सिंगल बी, यही होगा ना आरी? एवरीवन एग्री? रेगुलर एक्सप्रेशन, Yes, sir. so this is the regular expression for string having single a और single b, that's it। और कोई कॉम्बिनेशन तो आ नहीं सकता इसमें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ही लेटर है, एक ही सिंबल है, वो या तो ए होगा या तो बी होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। ऐसा मत पकड़ो कि सर ए और बी अगर दो सिंबल पॉसिबल है, सिंगल ए बोला तो सिंगल ए लिखो और कितना भी बी हो सकता है, उसके ए के बाद में भी, ए के पहले भी, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 1 है और वो 1 लेंथ पे ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो अगर ये सॉल्यूशन आया तो फिर मेरा आरी मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स, वो देखो। सो कहने का मतलब है कि मैं स्टार्ट स्टेट पे अगर इनपुट बी डाला तो मैं फाइनल स्टेट पहुंचूंगा, और अगर मैंने इनपुट ए डाला तभी भी मैं फाइनल स्टेट पहुंचूंगा। ये क्या बन गया? कनेक्शन बन गया ना स्टूडेंट्स। स्टार्ट स्टेट ऑन इनपुट ए गोज टू फाइनल स्टेट और स्टार्ट स्टेट ऑन इनपुट बी गोज टू फाइनल स्टेट, दोनों ही केस में ये फाइनल स्टेट पहुंच रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा और जनरल वे में जा रहा हूं। मतलब बुक्स में या फिर स्टैंडर्ड लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये मैंने आपको क्या किया, एकदम सिंपल वे में बता दिया, ठीक है। अब इसको पकड़ेंगे हम लोग, कैसे किया है लोगों ने। सो व्हाट दे आर सेइंग, ए पे ए ट्रांजिशन है, ये एक स्टेट कुछ तो हो गया और वहां पे ट्रांजिशन हुआ जहां पे इनपुट था ए। फिर ऐसा बोल रहे हैं कि बी पे भी ट्रांजिशन हो रहा है, हो सकता है कि एक स्टेट हो जहां पे बी आए तो कुछ दूसरा स्टेट मिलेगा, वो ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। और ये दोनों स्टेट सेम है, तो दोनों स्टेट को सेम दिखाने के लिए ये स्टार्ट स्टेट बोल दिया, और इन दोनों को सेम दिखाने के लिए कनेक्ट कर दो। सी हम लोग अगर कुछ भी ट्रांजिशन डायग्राम में कनेक्ट कर रहे हैं तो एरो के ऊपर हमको इनपुट दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो सिंस दिस थ्री आर सेम, सो हाउ कैन यू शो दैट सेम, तो इनके बीच में क्या इनपुट कर दो, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, नथिंग। ये एप्सिलॉन इनपुट दिखा दिया। अच्छा, ए पे वो फाइनल स्टेट पहुंच रहा है या फिर बी पे फाइनल स्टेट पहुंच रहा है, तो हमारे पास एक और फाइनल स्टेट है यहाँ पे, राइट। अब ये फाइनल स्टेट हो गया तो ये मतलब ये यहाँ पे फाइनल स्टेट रीच हो रहा है और ये भी फाइनल स्टेट पे रीच हो रहा है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन, इधर भी एप्सिलॉन।
सो अब कहने का लॉजिकल मीनिंग तुम लोग पकड़ो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तीनों का मतलब क्या हो गया, एक ही स्टेट ना, स्टार्ट स्टेट। बिकॉज स्टार्ट स्टेट में हो, कुछ भी इनपुट नहीं दिया तो इधर पहुंचे, कुछ भी इनपुट नहीं दिया तो इधर पहुंचे, दोनों पॉसिबिलिटी है, दिस और दिस। तो जब भी तुम्हारे किसी भी स्टेट से आउट गोइंग ब्रांचेस जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, और ओके। और अगर एक लाइन में हम लोग जा रहे हैं, सीरियल जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एंड, मतलब वो दोनों कंप्लीट करेंगे तो ही हम लोग पहुंचेंगे फाइनल पे। ठीक है, तो स्टार्ट से मैंने यहाँ पे आया, ये ए ट्रांजिशन पे इधर आया, मतलब ये फाइनल स्टेट पहुंच गया, या फिर बी ट्रांजिशन पे मैं इधर आया, मतलब फाइनल स्टेट पहुंच गया। सो इज दिस क्लियर? सो सभी बुक्स में ये फॉर्मेट सब लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो यही तुम लोग को करना है। डन एवरीवन? कंप्लीट करो इसको। ओके चलो, अभी मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, और यहाँ पे एक सपोज मुझे ए और बी दोनों करना है, मतलब ए बी कॉम्बिनेशन आया मेरे पास, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? सो आई जस्ट रिमूव दिस। So this is number 4, no? So number is 4th। चलो 4th नंबर लेते हैं हम लोग अभी, और 4th नंबर में अपने पास रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसका नाम है, जिसका वैल्यू है ए बी, मतलब स्ट्रिंग हैविंग 2 symbols, and that to be very specific, first symbol is A and the second symbol is B, मतलब मशीन यही लेने वाला है। तो अब इसका हम लोग आरी, अगर आरी है इसका, अगर हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा अगर डिजाइन करेंगे तो कैसे होगा? तो चलो हम लोग स्टार्ट अपना बेसिक फंडा लेंगे। हमारे पास क्या है, एक स्टार्ट स्टेट है, वो हम लोग ले रहे हैं स्टार्ट, और फिर हमारे पास क्या है, एक फाइनल स्टेट। सक्सेसफुल मशीन क्या होगा कि स्टार्ट और फाइनल को अगर तुमने कनेक्ट कर दिया, मतलब तुम्हारा फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया, वो सक्सेसफुल होगा। और अगर नहीं कनेक्ट कर पाए तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नल सेट, नथिंग, वो मशीन है ही नहीं। तो हमको क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी पे फाइनल स्टेट आ रहा है। तो चलो ट्रांजिशन ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई तो एक स्टेट रहेगा, वहां पे अगर ए आया तो वो दूसरे स्टेट में जाएगा, और फिर उस स्टेट पे अगर बी आया तो वो फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। और स्टार्टिंग में ही ए आता है, मतलब वो स्टार्ट स्टेट रहता है। तो अगर मैंने इसको ऐसा ड्रॉ किया, राइट, और इसको इधर कनेक्ट किया, सो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टार्ट स्टेट दिखाना है तो मैं इसको एप्सिलॉन कर सकता हूं, और मैं इसको भी एप्सिलॉन कर सकता हूं फाइनल स्टेट के लिए। तो इसका मतलब है कि इसको तुम दिखाओ या नहीं दिखाओ, एक ही मतलब है। तो डायरेक्टली तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो ना, स्टार्ट स्टेट, ये इसको स्किप कर दो, इसको हटा दो, ए बी फाइनल स्टेट। तो ये मतलब ए और बी दोनों आएंगे तो ही फाइनल स्टेट आएगा, खाली ए के ऊपर फाइनल स्टेट नहीं आ रहा है। वेयर ये क्वेश्चन में क्या होगा, ए के ऊपर फाइनल स्टेट आ रहा है, बी के ऊपर भी फाइनल स्टेट आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे दो पाथ है, ब्रांचिंग किया मतलब और, आउट गोइंग ब्रांच किया मतलब और हो रहा है। ठीक है, राइट? सो दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन? तो सेम डायग्राम को आप लोग शॉर्टकट में भी ड्रॉ कर सकते हो कि भाई स्टार्ट स्टेट है, इसके ऊपर ए आया इनपुट, फिर इसके ऊपर बी आया इनपुट, तो फाइनल स्टेट बन गया। डन? इज इट ओके एवरीवन? समझाइए। यस सर, क्लियर। यस सर। चलो अब हम लोग ना थोड़ा इसके पास जाते हैं जहाँ हमने बहुत सारा
पॉजिटिव क्लोजर या क्लीन क्लोजर किया था ना, A प्लस बी स्टार किया था, 0 प्लस 1 स्टार किया था, उसके बारे में जाएंगे हम लोग और उसको देखते हैं। सो आई होप अगर ये सबने ड्रॉ कर लिया है तो मैं इसको क्लियर फ्रेम करके आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो अब मुझे सपोज प्रथमेश ने बोला कि सर मुझे स्ट्रिंग का ना कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 और 1 का। सो उसने बोला कि 0 प्लस 1 स्टार ये कॉम्बिनेशन है, इसका मुझे ना फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करके बताओ। तो हम लोग ना बेसिक रूल पे जाएंगे, मतलब 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, और लूप लग रहा है ना, राइट? ये लूप लूप हो रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। ये मतलब एक वाइल लूप लगाना है हमको जो इनफाइनाइट टाइम रन करते जाए। वही प्रोग्रामिंग का लॉजिक थोड़ा यहाँ पे लेके आएंगे, और हर बार जब ये लूप एग्जीक्यूट करेगा तो अपने पास दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो 0 या तो 1। तो ऑप्शन के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया ना, ऑप्शन के लिए हमने क्या देखा है कि ये दो ऐसा सिंबल बनाना है। पहला ऑप्शन, अभी मैं एरो मार्क नहीं कर रहा हूं, तुम लोग समझ लो कि ऑल एरोज आर फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो मैं वहां पे एरो मेंशन कर दूंगा, ठीक है? ये 0 है, और अभी तुम्हारे समझाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है? 0 से 1 इधर जा रहा है, 0 से ट्रांजिशन हो गया, ये 1 का ट्रांजिशन हो गया, ओके डन। और फिर मैंने क्या बोला था कि भाई ये दोनों मैप फाइनली मैप कर रहे हैं एक फाइनल स्टेट में। यहाँ पे मैंने फाइनल स्टेट ले लिया था, ठीक है? ऐसा मैंने बोला था। ये एरो इधर एक मार्क कर देता हूं, और ये बोला था कि मैंने ये एप्सिलॉन ले लो, इसको भी एप्सिलॉन ले लो, और यहाँ पे एक स्टार्ट ऐड कर दो, उसको कनेक्ट कर दो इन लोगों से। और एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ओके, और स्टार्ट स्टेट में एरो मार्क करते हैं, ये इंडिकेशन है, ये स्टार्ट स्टेट आ गया। सो व्हाट इज दिस सेइंग, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 स्टार्ट स्टेट, ऑन 0 ट्रांजिशन रीचिंग फाइनल, ऑन 1 ट्रांजिशन रीचिंग फाइनल। तो ये सिर्फ या तो सिंगल 0 या तो सिंगल 1, बस यही इसका मतलब यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना अपने पास स्टार मार्क है, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कितनी बार भी तुम ये नंबर रिपीट कर सकते हो, ठीक है? सो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक मतलब छोटा सा हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। ये जो मैंने इसको बोला फाइनल स्टेट है, ये हटाना पड़ेगा पहले, ये फाइनल स्टेट नहीं होगा, राइट? अब मैंने पहली बार कॉम्बिनेशन लगाया, सपोज मैंने प्रथमेश ने बोला 0 1 1 चाहिए उसको, ये 0 इधर आया, सेकेंड टाइम वापस ऑप्शन देना पड़ेगा उसको, तो पीछे वापस जाना पड़ेगा ना। सो ये बैकवर्ड एरो लगाया मैंने, और एप्सिलॉन पे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये स्टेट पहुंचा तो एज गुड एज सेइंग दैट वापस तुम स्टार्ट में आ गए, और फिर से तुमको ऑप्शन मिला 0 और 1 का। तो ये इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक स्टूडेंट्स रन करता जाएगा, इनफिनिटी टाइम तक, ठीक है? अब ये जब यूजर को मन करेगा स्टॉप करने का तभी वो स्टॉप करेगा, अदरवाइज ये लूप कंटिन्यूसली रन होता रहेगा, 0 प्लस 1 एन नंबर ऑफ टाइम। लेकिन फाइनल स्टेट तो मैंने बनाया ही नहीं, फाइनल स्टेट भी बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आया मतलब कि अगर उसको स्टॉप करना है तो फाइनल स्टेट होना चाहिए, तो एक अलग से मैं एक्सप्लिसिटली फाइनल स्टेट ड्रॉ कर ले रहा हूं, और ये यहां से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूं, और कुछ भी नहीं इनपुट होना चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन डाल दे रहा हूँ। तो चलो मुझे जनरेट करना है
0 1 1 0। ये क्या पॉसिबल है, ये से चेक करेंगे। स्टार्ट स्टेट में आते हैं, 0, यस। फिर मैं पीछे जाऊंगा, 1, यस। वापस पीछे आ रहा हूं, 1, अगेन गोइंग बैक, 0। अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे सारे नंबर हो गए एंड, फाइनल स्टेट आ गया। और एक चीज मैंने बोला था कि भाई स्टार का मार्क मतलब क्या होता है कि कुछ भी इनपुट नहीं दिया तभी भी फाइनल स्टेट में आना चाहिए, क्योंकि स्टार मतलब कुछ भी नहीं है ना। लैंग्वेज द सेट लेंथ इज नथिंग, सो एप्सिलॉन इनपुट, एप्सिलॉन इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, नो। एप्सिलॉन इनपुट पे भी फाइनल स्टेट आना चाहिए। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक और लिंक लगाएंगे और वो लिंक को ऐड करेंगे फाइनल स्टेट में, और जिसका इनपुट होगा एप्सिलॉन, कि मतलब एप्सिलॉन इनपुट पे वो फाइनल स्टेट पे चला जा रहा है। तो अब ये बन गया 0 + 1 स्टार। ठीक है, समझा ये सबको स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। सो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि अगर अपने को बेसिक आता है तो ये सब कुछ नहीं है हमारे लिए। हाँ, बेसिक में हमको पता है कि अगर ये स्टार का स्मॉलेस्ट वैल्यू एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन इनपुट पे मुझे फाइनल स्टेट चाहिए, पॉसिबिलिटी है, यस, स्टार्ट स्टेट ऑन एप्सिलॉन इनपुट गोज टू फाइनल स्टेट। अच्छा, और यूजर कुछ भी नंबर जनरेट कर सकता है, कितनी बार भी यहाँ पे नंबर होना चाहिए, मतलब अपन प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे और वाइल लूप लगा देंगे यहाँ पे, तो ये वाइल लूप लग गया ना। सो कहने का मतलब है कि जब हम लोग कोई भी आगे चल के तुम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ोगे, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या रहेगा कि बहुत सारा तुम्हारा प्रोग्राम तुम्हारे पास रहेगा और तुमको टेस्ट करने का है उसको। तो तुम उसको ग्राफिकली इस तरह से डिनोट कर सकते हो। मतलब एक और एप्लीकेशन हो गया ये, कि जहाँ पे तुम वाइल लूप या फॉर लूप या फिर कोई भी इफ एल्स जो भी है उसको तुम लॉजिकली एक ट्रांजिशन ग्राफ में मेंटेन करोगे, और प्रोग्राम के स्टार्ट से एंड के बीच में कॉम्बिनेशन रहेगा तुम्हारा, और इस तरह से तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें कितने रीजन्स बन गए, हाँ, इसमें कितना क्लोज्ड लूप है, ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें आएंगी, कितना डिसीजन पॉइंट्स है, ये सारी चीजें मतलब टेस्टिंग में लगेंगी। तो दिस इज वन वे, आई मीन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो 0 + 1 हमने पहले बनाया, और फिर यहाँ पे ये कितनी बार भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ से इसको सेल्फ लूप कर दिया, पीछे साइड गया, ये n नंबर ऑफ टाइम इट विल गोइंग टू एग्जीक्यूट। और ये और प्लस क्या था इसके अंदर, एप्सिलॉन पे फाइनल आना चाहिए, इसलिए एप्सिलॉन अटैच कर दिया, ये बन गया। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और बोला कि ये ड्रॉ करो, 0 + 1 रेज टू प्लस, ये अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या चेंजेस होगा? जीरो + 1 रेज टू प्लस में क्या चेंजेस होगा स्टूडेंट्स? सर एप्सिलॉन निकल देंगे। बस, तो स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट में जो एप्सिलॉन पे गया हुआ है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 + 1 रेज टू प्लस वो क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब मिनिमम लेंथ तो 1 होना ही चाहिए। ये क्या होगा, 0 लेंथ वाला भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो कर रहा है ये। बस इसमें थोड़ा इसको हटा दो, ये लिंक अपने आप तुमको मिल जाएगा वो। तो टेक इरेजर एंड रिमूव दिस। साइमल्टेनियसली आप लोग भी ड्रॉ करो, ठीक है? ओके, अदरवाइज बाद में नहीं ड्रॉ करोगे तो समझेगा नहीं, और इसका अगर रेडीमेड नोट्स वगैरह बुक कुछ भी है तुमको नहीं समझने वाला है, इसलिए मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। डन। सो ये बन गया 0 + 1 रेज टू प्लस। ओह, आई थिंक अपना टाइम हो गया है, सो आई विल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, विल स्टॉप ओवर हियर एंड